ये 1914 से लेकर 1960 तक जितने भी लोग शहीद हुए हैं, हर देश के अपने शहीद होते हैं, विरासत होती है, परंपराएं होती हैं। पर आपको दो नदियों का संगम मिलेगा और इन दो नदियों के संगम में एक प्रसिद्ध मस्जिद भी, जिसे सुल्तान अब्दुल समेद जामिक मस्जिद भी कहा जाता है। ये यहाँ का राष्ट्रीय फल, और इस राष्ट्रीय फल की कीमत हमने चुकाई है 71 रिंगेट। हम बिल्कुल बन गए क्योंकि जो स्वाद था बिल्कुल हमें पसंद नहीं आया। और हमारे पीछे है ट्विन टावर, देख सकते हैं हमारे पीछे। हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। सिटी टूर डे फर्स्ट एट मलेशिया। अरे बैग का कुछ पता चला आप लोगों के? कुछ आया, मिल गया? आप बताइए, फिर तो पार्टी होनी चाहिए आज आपकी ओर से। सॉरी। पहुंच चुके हैं किंग्स प्लेस और ये देखिए, दिस इज किंग्स प्लेस। ओह गॉड, शैलेंद्र। अच्छा, तो आपकी फ्लाइट मिस हो गई? अच्छा ठीक है। या ओह वाह, किंग्स पैलेस। फिलहाल अपने पहले दिन के स्टोर में सबसे पहले हम अपनी गाइड से आपको सुनाएंगे थोड़ा सा इस मलेशिया के बारे में। The north connects with Thailand, south connects with Singapore. Okay, so in between Malaysia, so total we have 13 states, 3 federal territories. Okay, so we have parliamentary democracy. Every 5 years we have election. Okay, so when the winning party, the prime minister. Okay, out of 13 states, 9 states we have sultans. Okay, so balance 4 states we don't have sultans, we have governors. Okay, so what happens? These 9 sultans is they have rotation among them to become a king for 5 years term. Okay, so they will stay in this king palace, which is first we are going for king's palace, photo stop. We won't be entering the palace, just outside, photo stop. So for what are the rules of the kings? Okay, he has the power to revoke judges and prime minister too. Yes, so any emergency he can interfere and make a decision. Judges also. Yes, he has the power, the king. Okay, he has the power to reduce the jail sentence too. Okay, so besides parliament, when the law passes, okay, still we need the approval of the king. So the king is actually the supreme. So for 5 years, then will be changed another king. So the 9 sultans, they have rotation among them. So yellow represents royalty. Okay, so Malaysia's national flower is red hibiscus. Yes. So if you see why so many flags, Malaysia flag, every state we have different flag. It's about 33 million. Okay, so like a lot of people, which is the busiest city, which is Kuala Lumpur, which is we are staying here. So the climate here in Malaysia actually, November to January is a raining season. Every day it rains. Yes, 2 days it was raining. Today, happy we got the hot sun. Because if it's raining, we cannot go anywhere. If you want to take picture, it's a bit tough. Okay, so when it comes to the hot season, okay, it's May, June, July, 3 months. The hottest means the rains are lesser. So usually morning will be very hot sun. So in the evening it rains like 5 minutes, 1 hour, then it stops. It takes the heat out actually. So Malaysia we don't have winter, we have tropical climate. No winter. No. King Palace photo stop. Okay, so next National Monument photo stop. Then we will go for KL Tower photo stop, Twin Towers photo stop too. Then we will have Malaysian unique taste. That one is on the last. Then we will, in between, we will either go for National Mosque or National Museum. Either one, we will go for it. देखिए, आपको किंग्स प्लेस घुमाते हैं मलेशिया कुआलालंपुर में, और यहाँ पे जो सुल्तान है अभी, और देखिए इस खूबसूरत बिल्डिंग को आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ का राजमहल आप कह सकते हैं, किंग्स प्लेस नाम से मशहूर। और सिटी प्लेस में इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और देखिए खूबसूरत आप देख पाएंगे, और यहाँ पे बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आपको आएगी, बादशाह वाली फीलिंग आपको आएगी। और एक खूबसूरत पैलेस आपको दिखाई दे रहा है, और उसके बाद आपको हम दिखाई देंगे यहाँ पे। और देखिए इस किंग प्लेस में एक बेहतर चीज़ आपको दिखाई देगी, वो है देखिए यहाँ पे गार्ड 24 घंटे लोग बैठे रहते हैं, बारी बारी से ड्यूटी लेकर यहाँ खड़े रहेंगे। ये देखिए आप लोग काफ़ी देर से ऐसे ही इस मुद्रा में खड़े रहना है। और ये मलेशिया संस्कृति का एक बहुत ही कि अन्य देशों से लोग यहाँ आए हैं मलेशिया में सिर्फ घूमने के लिए, देखने के लिए। और देखिए कितने खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई देंगे। ये सुंदरता आपको बताती है कि मलेशिया कितना खूबसूरत देश है। इस किंग्स पैलेस का नाम है इस्ताना नियाग्रा। ये देखिए आपको खूबसूरत, और देखिए यहाँ का आप कह सकते हैं। अब हम निकले हैं यहाँ के नेशनल मॉन्यूमेंट की तरफ, और देखिए बड़ी गर्मी है, उमस बहुत ज़्यादा है और बहुत टेंशन। ऑल द टूरिस्ट आर हियर टू एक्सप्लोर। और देखिए यहाँ पर ये लोग निकल चुके हैं, अब हम नेशनल मॉन्यूमेंट्स की तरफ। तो अगला टूर हमारा है नेशनल मॉन्यूमेंट। ये 1914 से लेकर 1960 तक जितने भी लोग शहीद हुए हैं, और आपको पता है कि 1957 में मलेशिया आज़ाद हुआ। और देखिए ये फ़िलहाल यहाँ पे तारीख लिखी हुई है, इज़ अ नेशनल मॉन्यूमेंट। हर देश का अपना इतिहास है, हर देश की अपनी विरासत है, हर देश के अपने शहीद हैं।
फिलहाल हम लोग यहाँ मोन्यूमेंट पहुँचे हुए हैं और उसके बाद ये देखिए आप, ये यहाँ का राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मोन्यूमेंट ऑफ मलेशिया। देखिए आगे हम जाएंगे। हर देश की अपनी विरासत, हर देश की अपनी कहानी, हर देश का अपना वजूद, और उसके आधार पे। और देखिए ये हमारा नेपाली कपल है, हमारे देहरादून से हमारे अपने लोग। अच्छा लगता है जब दूर देश में हमारे ही अपने लोग मिलते हैं एज ए टूरिस्ट के तौर पर। फिलहाल ये देखिए आप लोग, हर देश के अपने शहीद होते हैं, विरासत होती है, परंपराएं होती हैं। उन परंपराओं को, उन विरासत को, उन शहीद लोगों को एक मॉन्यूमेंट के तौर पे हमेशा याद किया जाता है। और से मौजूद हूँ मैं मलेशिया के इस नेशनल मॉन्यूमेंट पे, यानी राष्ट्रीय स्मारक पर। यस, और हल्की सी बूंदाबांदी भी महसूस हो गई मुझे लग रहा है यहाँ पे। ओह वाह, ये तो कुआलालंपुर में राष्ट्रीय स्मारक, शहीदों का स्मारक हर देश में होता है, यहाँ भी है। तो शहीदों को नमन हर देश के सभी को करना चाहिए। हमने भी नमन किया आदरपूर्वक, और यही है सच्ची इंसानियत। फिलहाल हमने सम्मान दिया, आप भी दीजिएगा। और ये हमारे छात्र कौशल एकेडमी के जो यहाँ गए थे, तो उनके साथ रिपोर्ट बनना तो लाजमी था। आइए आपको एक ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाते हैं मलेशिया का। यहाँ पर आपको दो नदियों का संगम मिलेगा, और इन दो नदियों के संगम में एक प्रसिद्ध मस्जिद भी है, जिसे सुल्तान अब्दुल समेत जामिक मस्जिद भी कहा जाता है। ये दो नदियों के नाम है क्लैंग नदी और गोमक नदी। इन दोनों के संगम में पवित्र पावन मस्जिद भी मौजूद है। मस्जिद कुआलालंपुर के ठीक केंद्र में है, और यहीं से 1909 में ये मस्जिद बनी थी, और कुआलालंपुर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से मानी जाती है। और यहाँ मेट्रो स्टेशन का नाम भी मस्जिद जामे की है। और ये जो नदी है जो क्लैंग और गोम्बक से मिलकर बनी है, इसका नाम भी क्लैंग नदी है। और आप ये कह सकते हैं कि ये क्लैंग नदी है जो हमारी तरह ही जो हमारे देशों में पाई जाती है, उसी तरह की ये नदी है। फिलहाल तो आपने देख लिया कि क्लैंग और गोमक नदी के बीचों बीच स्थित पुरानी मस्जिद जामिक, जो सुल्तान अब्दुल समेत जामिक मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। फिलहाल देखिए यह है क्लैंग नदी, और आपको यहाँ पे गो भी दिखाई दिया है, जो हमारे उत्तराखंड में भी पाया जाता है। फिलहाल मुझे उम्मीद करता हूँ कि रिपोर्ट आपको पसंद आ रही होगी, और आपने इस सुप्रसिद्ध मस्जिद जो है, देखिए ये यहाँ का राष्ट्रीय फल है, और इस राष्ट्रीय फल की कीमत हमने चुकाई है 71 रिंगेट, यानी लगभग 1400 रुपये का। हमको यहाँ पानी पीना था, और पानी पीने की शर्त थी कि आपको पहले फल खरीदना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय फल है। और खा लिया। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत टेस्टी होता है। इसका जो स्वाद होता है वो एल्कोहलिक स्वाद आएगा, यानी जो बियर हम पीते हैं उनके लिए। क्योंकि मैं शाकाहारी आदमी हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, तो मुझे इससे नशा होने वाला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो देखिए ये प्यारे से पीस है, और इसको ये बहुत भारी होता है, इसको उठा नहीं सकते आप, इट्स टू हैवी, इसको उठाने की मन नहीं, सॉरी। हम बिल्कुल बन गए, क्योंकि जो स्वाद था बिल्कुल हमें पसंद नहीं आया, और अजीब स्वाद था। ये क्या हमने खाया हमें खुद पता नहीं है। तो कैसे स्वाद कैसा था? बहुत मज़ा आ गया। मैं तो बारटेंडर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस लगा कि क्या कहते हैं चीज़ से वाइन बनते हुए चीज़ों को पहले ट्राई करने में बहुत एक्सपीरियंस। आज मज़ा आ गया, मतलब है। ये लोग आपने नहीं खा पाए, आप लोग नहीं खा पाए, क्या बात? ये है कुछ अलग था अलग। माय गॉड, थोड़ा सा, हाँ बोलो। ये जैक फ्रूट के तरह टेस्ट करता है, थोड़ा स्वीट होता है, और इससे थोड़ा सा वाइन का टेस्ट आता है। बोला मैंने तो आज तक वैसे वाइन ट्राई नहीं किया, पर इट्स रियली गुड। बहुत बुरा लगा, मैंने क्या खा लिया, और क्योंकि 1200 रुपये का था तो क्या करें, थोड़ा चखना पड़ा। फिलहाल देख रहे थे आप रवि के बिंदास, और देखिए आप यहाँ चला सकते हैं, और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और ऑनलाइन पेमेंट आप ग्रैब से कर सकते हैं। फिलहाल ये खूबसूरत प्रदेश की तरफ हम आए हैं आपका कुआलालंपुर में, और यहाँ देखिए हम प्रवेश कर रहे हैं। आओ, और देखिए ये है आपका नेशनल म्यूजियम। ओह माय गॉड, और यहाँ ये एक्चुअल में ये देखिए ये यहाँ पे 9 स्टेट है मलेशिया में, और इस 9 स्टेट के बाद मलेशिया का अपना एक झंडा है। और ये देखिए आप लोग, तो घूमते हुए शानदार फोटो खींचना भी हमारा हमारा टावर रह जाएगा, हमारा ट्विन टावर रह जाएगा आपके चक्कर। वो बताए ना हमको, कल तो आई नहीं थी हमारे साथ। और हम जा रहे हैं ट्विन टावर की तरफ। ट्विन टावर कहाँ भाई? वही ट्विन टावर है कहाँ? और यार दिस इज ट्विन टावर यार। हमारे पीछे है ट्विन टावर, ये देख सकते हैं हमारे पीछे, और सभी के बिंदास बोल में। और यहाँ से हम करेंगे एक शानदार रिपोर्टिंग करने वाले हैं लाइव थोड़ी देर में। ओह ये देखिए आप, ये है ट्विन टावर। ओह हो कहाँ से? तो देखिए इस समय हम लोग ट्विन टावर में हैं। ओहो यार देखो, लेकिन यहाँ कहाँ से होगी रिपोर्टिंग यार, हैं? ओहो
अच्छा ओहो। और देखिए ये नेशनल फ्लैग है और हम यहाँ पहुँचे हैं। ये कोलमपुर का देखिए ये खूबसूरत दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये है गार्डन और इस तरह की कोई गार्डन और देखिए ये कितना खूबसूरत यह है आपका। ओह माय गॉड। तो देखिए ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत ट्विन टावर जहां मौजूद है और ये देखिए आप कितना सुंदर कितना शानदार ये चौराहा आपको दिख रहा है और कितनी हाई राइज बिल्डिंग के लिए जाना जाता है और ये आपका पब्लिक बैंक है और यहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। बहुत शांत है, उसके बावजूद आप साफ सफाई आप देख पाते हैं यहाँ पे। और फिलहाल रवि के बिंदास बोल वहाँ में बने रहिएगा, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। और कल हम जाने वाले हैं इस ट्विन टावर में, अंदर प्रवेश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस ट्विन टावर के इस ब्रिज में आपको घुमाएंगे। देखिए कितने फ्लोर है, आप काउंट कीजिएगा। ये है शानदार ट्विन टावर। फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल और देखिए वेरी गुड हेयर। और देखिए अब हम प्रवेश कर रहे हैं और देखिए ये है मलेशियन फ्लैग और ये देखिए अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस ये देखिए ये 4 फ्लैग ये हैं और 4 फ्लैग ये हैं और ये आपका बड़ा फ्लैग है। तो मलेशिया ट्रिप की कुछ स्नैप्स कुछ फोटो के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। आपने ये दूसरा वीडियो देखा, अब लगातार हर रात 9 से 10 बजे के बीच आप रिपोर्ट देखते रहेंगे। रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय मलेशिया।